مذہبی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم کرامت سمجھتے ہیں، لیکن کچھ جادوگری، کرامت، معجزے، ان میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس بارے میں ہم رہنمائی حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام یاسر نظامی صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم سر السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر بہت شکریہ فرسٹلی پروگرام میں آنے کے لیے، اور سیکنڈلی سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی معجزے کی حقیقت کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم سوال ہے۔ سب سے پہلے تو اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ معجزہ کہتے کسے ہیں اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ معجزے کا تعلق اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ یہ ہمیں بات کلیئر کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی انہونی ہو جاتی ہے یا ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، ہمارے معمولات کے اندر کوئی ایسی نا اتفاقی، کوئی عجیب سی چیز ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو معجزہ کا نام نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کو اللہ کی قدرت کا نام دیں گے۔ یا اللہ کا کوئی نیک آدمی ہے اور اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز صادر ہوئی ہے تو ہم اس کو کرامت کا نام دیں گے۔ یا کوئی ایسا شخص ہے جو جادوگر ہے تو اس کی طرف سے جو چیزیں صادر ہوتی ہیں تو ان کا تعلق نہ معجزے کے ساتھ ہے اور نہ ہی کرامت کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں ان کے درمیان ڈیفرنس رکھنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ذرا سی بات ہے، معجزے کا تعلق اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کرامت کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ معجزے کا اظہار ہوتا کیوں ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا اظہار کروانا مقصود ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس شخص کی عظمت اور اس پاک ہستی کی عظمت کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے معجزے کا صدور ہوتا ہے کہ یہ ہستی جو ہے وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نیک اور مقرب ہستی ہے، اور اللہ پاک اس ہستی کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار بھی کروا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگوں کو اس بات کا پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، بلکہ اللہ کی نیک، اللہ کے نبی اور اس کے رسول کی مبارک ہستی ہے۔ اور اگر اللہ کے نیک بندوں کی طرف سے کوئی ایسی چیز صادر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرامت ہے، اور کرامت جو ہے وہ قرآن عزیز کے اندر بھی بے شمار مقامات پر اس کا اظہار کیا گیا، جس طرح کہ سیدنا خضر علیہ السلام کی کرامت ہے، سیدنا آصف بن برکھیا جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، ان کی کرامت ہے، اصحاب کہف ان کی کرامت، بے شمار کرامات کا ثبوت ہے۔ لیکن بارے دیگر یہ والی بات میں عرض کر دوں، معجزے کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ کرامت کا تعلق اہل بیت اعظام، صحابہ اکرام، تابعین و تبع تابعین اعظام، اولیاء کرام، اللہ کی نیک اور مبارک ہستیوں کے ساتھ ہے۔ بہتر ہو گیا۔ تو سر معجزے اور کرامت میں ہمیں تقریباً ڈفرینس تو پتہ چل گیا، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بھی معجزے یا کرامت، جسے معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں، وہ گھروں میں پڑھانے کا بھی ایک سلسلہ جاری ہے، اور کسی کی عقیدت کا تو ہم ٹھیس نہیں پہنچا سکتے، نہ ہم اس کو منع کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بیسیکلی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ درست ہے ہم گھروں میں کسی میٹھے کے ساتھ معجزہ پڑھانا اور اس کے ساتھ کوئی دعا یا منت منسوب کرنا؟ دیکھیں، اس حوالے سے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ در حقیقت یہ جتنی بھی چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر کرتے ہیں، تمام کا مقصد جو ہے وہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے حصول کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں اہل بیت اطہار محرم کے مہینوں میں، یا جس طرح کہ سیدنا امام جعفر صادق کے دن آتے ہیں تو ان دنوں میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی طرف سے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو در حقیقت یہ ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کا اہتمام کرنا ہے، اور بالکل یہ جائز ہے، اور کسی کے وسیلے سے ہم پھر دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کو معجزے کا نام دینا جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، اور عقیدت اور محبت کے حصول کے لیے آپ کلام پاک پڑھتے ہیں، آیات مبارکہ ان کی تلاوت کرتے ہیں، آیات تسبیح، جس طرح کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس کا اہتمام کرتی ہیں، تو یہ اہتمام کرنا جو ہے وہ بلا شبہ جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں سیدنا امام جعفر صادق کا جب دن آتا ہے تو اس دن کے اوپر وہ کھیر وغیرہ کا پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس کو ہم کنڈوں کا نام دیتے ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ کھانے کا ایصال ثواب وہ بھی جائز ہے، آیات مقدسہ ان کا ایصال ثواب بھی جائز ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے لیے غور طلب ہے اور جو ہمارے فکر سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ معجزہ نہیں کہلاتی، یہ ہماری عقیدت کے اندر آتی ہیں، اور یہ ان نیک لوگوں کی ہستیوں میں ہماری طرف
तरफ से एक तोहफ़ा है। ज़ाहिर सी बात है वो अल्लाह की इंतहाई नेक और मुकर्रम हस्तियाँ हैं। जब हम उनकी बारगाह में इसाले सवाब पेश करते हैं तो उनकी वजह से हमारे अपने गुनाह जो हैं वो भी बख्शे जाते हैं और साथ ही साथ हमारी नेकियों में इजाफा भी होता है। और तीसरे नंबर पर हमारे दर्जात में भी अल्लाह पाक इजाफा फरमाता है। और एक मोमिन का दूसरी मोमिन को दिए जाने वाले तोहफ़ों में से बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो दुआ का है। तो हम दर हकीकत इसके ज़रिए उस दुआ का भी एहतमाम करते हैं। बिल्कुल इस तरह से ही है सर। सर हम बहुत एक सोसाइटी में यहाँ फिर रहते हैं, वहाँ पे अच्छे बुरे लोग दोनों मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हम कह सकते हैं भेस बदल कर एक ऐसा रूप धार कर बैठे होते हैं और अपने जादूगरी या कहानी को एक तरह से करामत का या समथिंग कहा जाता है। तो उनमें हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? एक तो पहली बात तो यकीन या अकीदा होता है फर्स्टली, सेकेंडली हम कैसे उसको फ़र्क कर सकते हैं इन दोनों? देखिए उसके फ़र्क करने का तरीक़ाकार यह है कि हमें कुरान और सुन्नत का फ़हम होना चाहिए। जो कुरान और सुन्नत की बुनियादी तालीमात हैं उनका हमें इल्म होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते, हमारे इलाके के अंदर भी बहुत सी ऐसी मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं। जिस तरह कि आपका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आप लोगों की रहनुमाई का फरीज़ा जो है वो सर अंजाम दे रही है। तो ज़रा इसी बात है, हमें चाहिए कि जो अथेंटिक सोर्स हैं उनसे रहनुमाई ली जानी चाहिए। और ऐसे लोगों के बारे में ज़रा सी बात है जो लोगों को धोखा दही से, फ़रेब दही से और ऐसी ऐसी झूठी कहानियां जो हैं वो लोगों को सुनाते हैं, तो उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान अजीज़ और फुरकान हमीद का ये उसूल है कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें बयान की गई हैं, अक्ल उन तमाम चीज़ों को तस्लीम भी करती है। और अगर हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें देखी जाएँ कि जिनको अक्ल जो है वो तस्लीम ना करती हो, तो इसका मतलब यह है कि वो एक मफरूज़ा है, एक अफसाना है और उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जिस तरह की देखा जाए ये कहानियाँ जो हैं वो मफरूज़ों पर मबनी होती हैं और इन कहानियों के अंदर कोई ऐसी हकीकत जो है वो बयान नहीं की जाती। सबसे बड़ी हकीकत जो है वो किसी की ज़ात और शख्सियत के हवाले से ये है। पहले नंबर पर यह है कि उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कैसा है, ये हमें जानना चाहिए। दूसरे नंबर पर वो अल्लाह के प्यारे हबीब के उसवा हसना पे किस कदर अमल पैरा होता है। ज़री सी बात है, अगर वो सौमो सलात का पाबंद नहीं है तो वो अल्लाह नेक और मुकर्रम बंदा तो नहीं हो सकता। और तीसरे नंबर पर यह है उसका लोगों के साथ हुस्न अखलाक जो है वो कैसा है, उसका रवैया लोगों के साथ कैसा है। ज़ाहिरी तौर पर ये तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें बता देती हैं कि ये आदमी एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। और इसके साथ साथ चौथे नंबर पर हमारी सोसाइटी भी है, सोसाइटी के लोग भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा है। हमें होता है कि अगर हमारा काम अच्छे से हो रहा है, हमारे करामत समथिंग हम कह रहे हैं, वो हम एक चीज़ पर अंधा एतकाद रखना शुरू कर देते हैं। हम इस चीज़ को भूल जाते हैं। इतनी प्रैक्टिकली या इतनी माइनर चीज़ों में तो हम जाते ही नहीं है ना, ये देखने के लिए सोमो सलात का पाबंद है, उसना पर अमल कर रहा है। हम ये कि चलो हमारा काम हो रहा है या एक हमें झांसा मिल रहा है। हम होता है ना कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगते हैं, एक बंदा खड़ा है, दो खड़ा है, तो आप देखेंगे वहाँ रश लगना शुरू हो जाएगा। इस तरह से एक तरह से हम इस दौर में एक तरह से मौजूद हैं कि कोई भी यहाँ पे गद्दी रखकर कोई चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर दे, हम सब बैठना शुरू हो जाएंगे उसके लिए। ये बिल्कुल जहालत पर मबनी बात है और इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें आगही नहीं है, हमें अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो हैं वो माँ बाप हैं। दूसरे नंबर पर मिंबर और मेहराब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। तीसरे नंबर पर हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो हमें इस हवाले से आगही जो है वो दिलाएँ। चौथे नंबर पर हमारा मुआशरा है। हमारे मुआशरे की ज़िम्मेदारी बनती है कि जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, ज़री सी बात है, उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि इनके शर से लोगों को बचाया जाए। जिस तरह के दीगर जो हैं वो बुराई वाली चीज़ें हैं, उनसे बचाने के लिए हम कानून की मदद और मुआवनत लेते हैं, तो ऐसे मामलात में भी हमें कानून की मदद और मुआवनत लेने की ज़रूरत है ताकि ऐसे लोगों का सदोबाब किया जा सके और मुआशरा जो है और मुआशरे के अफराद जो हैं उनको इनके शर से वो महफूज रखा जा सके। तो ये एक बुनियादी चीज़ आ जाती है। और जहाँ पर भी ये चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर देखा जाए वहाँ पर अजीब किस्म की एक घिन और कराहत सी महसूस होती है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा दीन जो है वो हमें इस बात की तालीम देता है अच्छे अमाल के अच्छे असरात होते हैं और बुरे अमाल के बुरे असरात होते हैं। जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर वो बैठने को बंदे का जी भी नहीं करता। हमें इस बात को भी सोचना चाहिए, वहाँ पर रहमत का नुज़ूल नहीं होता। आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर आप ज़हनी तौर पर और क़ल्बी तौर पर सुकून महसूस करते हैं। तो जहाँ पर आपको ज़हनी और क़ल्बी तौर पर सुकून महसूस हो, आपको वहीं पर जाना चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि हमारे यहाँ देखा जाए भाई हमें तो अपने काम से गरज है,
वक्ती तौर पर हमारा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, वो ईमान की हिफाजत का है। अल्लाह पाक, ये ज़िंदगी जो है वो अल्लाह की अमानत है, और ज़िंदगी को अल्लाह के फरमान पर गुजारना जो है यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हम दुआ भी करते हैं ना, खात्मा बिल ईमान, खात्मा बिल शुक्र। आप ये मत सोचें कि हमारा फ़ायदा हो रहा है, आप ये देखें कहीं इस अमल से अल्लाह के फरमान की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही, कहीं इस अमल से अल्लाह के प्यारे रसूल की तालीमात की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। आज के दौर में देखा जाए, आपने ये पॉइंट बड़ा हाईलाइट किया है, पूरी सोसाइटी के अंदर अक्सरियत लोगों की ऐसी है कि जो इसी अंधी अकीदत का शिकार है, और उनको इससे बाहर निकलना चाहिए। वक्ती तौर पर आपको ऐसा होगा कि यार इसमें मुझे जो है वो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जो अल्लाह के फरमान पर अमल करने वाला हो वो कभी भी खसारे और घाटे में नहीं रहता, कामयाबी जो है उसका मुकद्दर है। जिस तरह वो बात की जाती है ना कि हक जो है वो हमेशा गालिब रहेगा और बातिल जो है वो मिट कर रहेगा, इसी तरह ये जो अंधी अकीदत है ये ख़त्म होकर रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा उसका पोल जो है वो लोगों के सामने खुल जाएगा, फिर लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वाकईतन हमें ऐसे लोगों के पीछे नहीं चलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों के पीछे चलना चाहिए जो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के फरमान पर प्रॉपर तरीके से अमल करते हैं। एक्चुअली हमें जल्दी बहुत है ना हर काम की, हमें होता है कि बस हो जाए, हम ये नहीं सोचते कि उसकी देरी में क्या हिकमत है उस बात की, हमारे लिए क्या बेहतरी है। लेकिन हम कोई क्या कर सकता है, पत्ता भी नहीं हिलता बगैर उसकी रजा के, तो कोई क्या कर सकता है, मुझे ये समझ नहीं आता। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें जल्दबाजी है, इस हवाले से हमारा दीन हमारी रहनुमाई फरमाता है। हमारा दीन कहता है कि जल्दबाजी का ताल्लुक जो है वो शैतान के साथ है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, देर है पर अंधेर तो नहीं है, और अगर देर होगी तो उसमें अल्लाह की तरफ से आप पर खुसूसी रहमतों का भी नुज़ूल हो सकता है। आपको अल्लाह की हिकमत पर राज़ी रहना चाहिए। क्या अल्लाह हकीम नहीं है? अल्लाह गालिब है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। आप अल्लाह के फरमान पर अमल करते जाएं, जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपके मुकद्दर में लिखी है या आपको अता फरमाएगा वही आपके हक में बेहतर है। वो थोड़ी है लेकिन उसके अंदर बेहतरी भी है और उसके अंदर बरकत भी है। बसा औकात बहुत सारी चीज़ों का आ जाना ये हमारे लिए बेबरकती का बाइस बन जाता है। तो हमें चाहिए कि हर हाल में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने की कोशिश करनी चाहिए, और ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम लोग अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं रहते, जिसकी वजह से हम लोग उजरत पसंदी का शिकार हो जाते हैं, जल्दी जल्दी से सारे के सारे कामों को निपटाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा तरीका जो है वो हमारे दीन का नहीं है। दीन के अंदर हर चीज़ की बाकायदा एक प्लानिंग है, एक तरतीब है, मनसूबाबंदी है, उसी के हिसाब से सारे के सारे मामलात को सरअंजाम दिया जाता है। सबसे बड़ी मिसाल यह है कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह की लारैब किताब है। ये एक बार नाजिल क्यों नहीं हुई? 23 साल का अरसा लगा है इसको आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होने में। हमें इस बात को समझना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने ये तमाम की तमाम जो तालीमात हैं, जो आयात मुक़स्सा, ये हमारी हिकमत के लिए, अपनी हिकमत के मुताबिक हमारी रहनुमाई और हमारी हिदायत के लिए नाजिल फरमाई। इसीलिए अल्लाह की तरफ से जो ऐसी चीज़ें होती हैं हमें उन पर साबिर भी रहना चाहिए और शाकिर भी रहना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है सर। आपकी हमें मौज़ा या करामत इस तरह से जो भी अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कोई मंसूब करदा या जो भी करीबी रह चुके हैं उनसे मुतालिक बता सकेंगे आप? बहुत सारी करामात है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का एक एक लम्हा वो मौजज़ा है। आपका सांस, आप जो सांस लेते हैं, आपकी सांस की खुशबू जैसी कायनात के अंदर किसी की खुशबू नहीं है। आप जो आपके जिस्म अथर से जो खुशबुएं आती हैं, जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं मैंने बहुत सारी ऐसी खुशबुएं इस्तेमाल की हैं, लेकिन जो खुशबू नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम के जिस्म अथर से आती है, कायनात के अंदर ऐसी कोई खुशबू नहीं है कि जो उस खुशबू का मुकाबला कर सकती हो। यहाँ पे एक और बात भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को सूंघा करते थे। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने आपको बारहा देखा है कि आप हसनैन करीमैन को ऐसे सूंघते हैं जैसे फूल को नहीं सूंघा जाता। तो आप फरमाते हैं कि ये दोनों के दोनों दुनिया में मेरे फूल हैं और इनसे मुझे खुशबुएं आती हैं। अगर हसनैन करीमैन जो हैं वो फूल हैं, उनसे खुशबू आती है और उनके जिस्म अथर की पाकीज़गी और तहारत का ये आलम है। आप तो इमामुल अंबिया हैं, इमामुर रुसूल हैं, फिर आपके जिस्म अतर की तहारत और पाकीज़गी का आलम क्या होगा। इसी तरह आपके मौजज़ात के अंदर ये है। देखिए, मौजज़ा जो है ये लोगों के मुतालबे पर दिखाया जाता है, और दिखाने का मकसद क्या है? ताकि लोग हिदायत के रास्ते पर आ जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई आदमी जो है, एक खातून जो है वो अल्लाह के प्यारे रसूल के बारगाह में हाजिर हुई। उसका एक ही बेटा था। अभी दाऊद शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है। उसने अल्लाह के प्यारे रसूल की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये बेटा जो है वो बोलना शुरू कर दे, अगर ये बोलेगा तो मैं आपकी ज़ात पर ईमान ले आऊँगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर उस बच्चे की जानिब किया। आप मुस्कुराए और मुस्कुराकर फरमाने लगे, जो पैदाइशी बोल नहीं सकता, गूंगा है,
आपने बच्चे की तरफ देखा और देखकर फरमाया बेटे बताओ मैं कौन हूँ। वो बच्चा आगे से जवाब देता है अंत मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपका नाम मोहम्मद भी है और आप अल्लाह के रसूल भी हैं। ये भी अल्लाह के प्यारे हबीब का मौजज़ा है कि जो बोल नहीं सकते आपकी अता से, आपके फजलो करम से वो बोलना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह दरख्तों के हवाले से देखा जाए, दरख्त जो है वो आपकी बारगाह में सजदा करते हैं, आपकी बारगाह में आकर सलाम अकीदत व मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद पहाड़ के हवाले से बताया। सहाबा इकराम से आप फरमाते हैं कि जानते हो ये कौन है? ये ओहद पहाड़ है, और ये ओहद पहाड़ जो है वो हमसे मोहब्बत करता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद पहाड़ पर हैं और वो झूमने लगा तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने अपना आसा मुबारक उस पर रखा और फरमाया तुम क्यों झूम रहे हो? क्या तुम्हें यह बात पसंद नहीं है कि तुम पर अल्लाह का रसूल भी है, नबी भी है, सिद्दीक भी है और शहीद भी है? तो ये अल्लाह के प्यारे रसूल के मौजज़ात हैं। इसी तरह अबू जहल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बारगाह में हाजिर होता है और हाजिर होकर कहता है ये बताएं जी, अबू जहल जो है वो अल्लाह के प्यारे रसूल को हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, वो कहा करता था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उसने जब उसकी मुट्ठी में कंकरियां थीं और उसने कहा कि बताएं जी मेरी मुट्ठी में क्या है? अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया मैं बताऊं या वो बताए जो तुम्हारी मुट्ठी में है? तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने जब मुट्ठी को हुक्म दिया तो वो कंकरियां जो हैं वो अपनी ज़ुबान से, जो अल्लाह पाक ने उनको ताकत अता फरमाई थी, वो अपनी ज़ुबान से कलमा पढ़ने लगी। अबू जहल जो है वो कंकरियां वहाँ पर फेंक कर वो भाग गया। ये अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात हैं। और आपके मौजज़ात में ये वाला मौजज़ा कितना खूबसूरत है। आप पिंगूड़े में हैं और आप चाँद की जानिब ऐसे करके उंगली का इशारा फरमाते हैं, आपकी उंगली जिधर जाती है चाँद जो है वो उसी तरफ हो जाना शुरू हो जाता है। और इसी तरह सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी जब नमाज असर कज़ा हो गई तो नमाज असर के कज़ा हो जाने पर सूरज जो है वो मगरिब के वक्त पर पहुंच चुका था। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा से फरमाया अदा पढ़ना चाहते हो या कज़ा करना चाहते हो? जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह अदा पढ़ना चाहते हो। अल्लाह के प्यारे हबीब ने अपनी उंगली के इशारे से डूबते हुए सूरज को असर के वक्त पर वापस लाए। और दूसरी बात, जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने यहाँ पर असर की नमाज जो है वो अदा की, फिर अल्लाह के प्यारे हबीब ने दोबारा उंगली का इशारा फरमाया और सूरज दोबारा अपने वक्त पर जाकर पहुँचा। तो ये सारी के सारे मौजज़ात जो हैं ये दर हकीकत अल्लाह के प्यारे रसूल की अज़मत और आपकी शान व शौकत को बयान करती हैं और इस बात को बयान करती हैं कि आपका अल्लाह के यहाँ कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है। और इस बात को भी बयान करती हैं कि ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो अल्लाह की तौफीक और अल्लाह के कुदरत के बगैर हासिल नहीं हो सकती। बिल्कुल इस तरह से, और जितने भी मौजूद आपने बयान फरमाया बहुत खूबसूरत है। और इस तरह से अगर जैसे बंदा सुनता जाए और सुनता जाए तो एक तरह से ईमान ताज़ा होता है और उसमें फ़र्क करने में तमीज़ आ जाती है कि हमें सोसाइटी में कहाँ रहना चाहिए, हम किसकी उम्मत है, हम किसके पैरोकार हैं और हम किसके हवाले से हम बात कर रहे होते हैं इसमें। तो एक तो सबसे पहले तो इसमें एक अदब का करीना है वो बेहतरीन है, वो रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जब भी हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है कि वो दरूद पाक जो है ना वो एक मौजे से कम नहीं होता उसके लिए, जो परेशानी में है, जो किसी चीज़ में घिरा हुआ है उस ज़ात के लिए। तो हमें एक तरह से ये तोहफा है उसकी ज़ात का, एक मौजा है। आप इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपकी तौफीक, आप खुद जिस तरह से कहते हैं ना कि आपने अभी शुरू में कहा कि बैठने वाले पे पता चल जाएगा वो कितना पाकीज़ा है या उससे कैसी वाइब और खूबसूरत आ रही है। तो इसके बारे में अगर आप दरूद पाक की फजीलत के बारे में अगर हम इसको वाइंड अप करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक जो है आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम का जिक्र करना, आपके मौजज़ात का जिक्र करना दर हकीकत बंदे के ईमान में इजाफा का ज़रिया। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। और इसी तरह दरूद पाक ये अल्लाह के प्यारे हबीब का जिक्र है, ये अल्लाह का जिक्र है। और दरूद पाक पढ़ने से बंदे पर क्या होता है? रहमतों का नुज़ूल होता है। दरूद पाक पढ़ने से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। दरूद पाक पढ़ने से बंदा अल्लाह के प्यारे रसूल के करीब हो जाता है। नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम आप फरमाते हैं जो शख्स इस बात को पसंद करता हो ना कि उसे क़यामत वाले दिन मेरा क़ुर्ब नसीब हो, वो क़यामत वाले दिन जो नफ्सा नफसी वाला दिन है, अगर दुनिया के 50,000 साल हों तो क़यामत का एक दिन बनता है। और उस दिन में उस नफ्सा नफसी के आलम से अपने आप को महफूज रखने के जो ज़राए हैं उन ज़राए में से एक बेहतरीन ज़रिया
जो अल्लाह पाक ने बतौर नेमत हमें अता फरमाया है वो नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की ज़ात पे दरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं जो जितना ज़्यादा मुझ पे दरूद पाक पढ़ेगा कल क़यामत वाले दिन उसे मेरा कुर्ब नसीब होगा। फिर आप फरमाते हैं उसे मेरा कुर्ब भी नसीब होगा और उसे मेरी शफ़ाअत भी नसीब होगी। अगर हम चाहते हैं हमें अल्लाह के प्यारे रसूल का कुर्ब नसीब हो, हम चाहते हैं कि हमें अल्लाह के प्यारे रसूल की शफ़ाअत नसीब हो। शफ़ाअत का मतलब यह है आप बग़ैर हिसाबो किताब के अल्लाह के फजलो करम से उसके प्यारे हबीब की शफ़ाअत उज़्मा से अल्लाह पाक आपको जन्नत में दाखिल फरमा दे, ये शफ़ाअत कहलाता है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब की शफ़ाअत उज़्मा जो है वो नसीब हो जाती है। और दूसरी बात यह है जो आदमी जिस गम में मुब्तला हो, जिस परेशानी में मुब्तला हो, नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ता है तो दरूद पाक के पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उसके तमाम के तमाम गमों और तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है। दर हकीकत दरूद पाक पढ़ना अपने लिए रहमतों के हुसूल का एक बेहतरीन ज़रिया है। दरूद का मीनिंग जो है वो भी हमें याद रखना चाहिए। दरूद का माना है रहमत। हम जो अल्लाह के प्यारे हबीब की बारगाह में दरूद पाक पढ़ते जाते हैं उसी तरह हम पर रहमतों का नज़ूल होता जाता है। और जो आदमी जिस पर और जहाँ पर रहमतों का नज़ूल होता है वहाँ पर अल्लाह पाक हर किस्म की ज़हमतें, परेशानियों और तकलीफ़ों को दूर फरमा देता है। तो इसलिए दरूद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और दरूद जो है ये इस बात का सबूत भी है कि हम अल्लाह के प्यारे रसूल के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। क्यों? हमारा दीन हमें इस बात की तालीम देता है कि जो जिसके साथ मोहब्बत करता हो वो उसका जिक्र कसरत के साथ करता है और जो जिसका जिक्र कसरत के साथ करेगा कल क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ होगा। ज़री सी बात है, हर अहले ईमान इस बात को पसंद करता है कि मुझे अल्लाह के प्यारे हबीब की शफ़ाअत नसीब हो। और एक और बात बड़ी है, इस दुरूद पाक की बरकत से क्या जब हम कब्र में जाएंगे तो कब्र में अल्लाह के प्यारे रसूल की हमें ज़ियारत भी नसीब होगी और अल्लाह के प्यारे हबीब की मार्फत भी नसीब होगी। वगरना बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इससे महरूम हो जाएंगे। और इसी दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। ज़री सी बात है, ये दुरूद का अमल एक ऐसा अमल है जिसमें अल्लाह की ज़ात ये अल्लाह की भी सुन्नत मुबारक है, उसके फरिश्तों की भी सुन्नत मुबारक है और अहले ईमान को भी इस बात की तालीम दी गई है। आप भी नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। जो जितना ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा अल्लाह के भी करीब होगा, अल्लाह के प्यारे रसूल के भी करीब होगा। उसकी कब्र जो है इस दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह पाक मुनव्वर भी फरमा देगा और मुअत्तर भी फरमा देगा। और इस दुरूद पाक की बरकत से कल क़यामत वाले दिन उसे अल्लाह के प्यारे हबीब के हम्द वाले परचम तले साया भी नसीब होगा। हौज़े कौसर पर उनके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम हासिल करने की तौफीक भी मिलेगी और पुल सिरात पर वो हुजूर का मंजूर नज़र होगा। जो आदमी हुजूर का मंजूर नज़र हो जाएगा वो वहाँ से कभी गिरेगा नहीं और हिसाब किताब से अल्लाह पाक इसी दुरूद पाक की बरकत से उसे महफूज फरमा देगा। मैं यही बात अर्ज करना चाहूँगा कि दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अगर हम चाहते हैं हमारी दुआएं जो हैं वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों तो दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन तरीक़ाकार ये है, शुरू में भी दुरूद पाक पढ़ें और आखिर में भी दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक तो मकबूल ही मकबूल है लेकिन इस दुरूद पाक की कबूलियत के साथ अल्लाह पाक आपकी दुआओं को भी अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाएगा। बेशक इस तरह से बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए और इस तरह से सब बयान फरमाने के लिए। थैंक यू सो मच।